Okay, students, today we are going to start our next lecture. We will discuss today in that lecture basically de Broglie hypothesis. And what is de Broglie hypothesis? First of all, we will discuss about what is hypothesis. Generally, hypothesis is a proposed explanation of a phenomena. यानी एक जनरल एक्सप्लेनेशन या जनरल अजम्पशन जो हम किसी भी वर्क के लिए प्रपोज करते हैं, दैट इज हाइपोथेसिस. यानी कि डी ब्रॉगले का ये जो है रिलेशन, ये डी ब्रॉगले हाइपोथेसिस क्यों कहलाता है. तो फर्स्ट सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि डी ब्रॉगले की तो है, लेकिन हाइपोथेसिस क्या है. हाइपोथेसिस एक प्रपोज एक्सप्लेनेशन है किसी भी फिनोमिना की, यानी एक जनरल अजम्पशन है. और फॉर हाइपोथेसिस टू बी अ साइंटिफिक वन, तो साइंटिफिक मेथड्स रिक्वायर्स दैट वन कैन टेस्ट इट. यानी कि साइंटिस्ट ज्यादातर क्या चीज को हाइपोथेसिस में लेते हैं जिसको मजीद आप टेस्ट कर सकें, जिसको आप मजीद एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू जो है जस्टिफाई कर सकें. डी ब्रॉगले ने भी बिल्कुल कुछ इसी तरह का हाइपोथेसिस जनरेट किया फॉर बाय यूजिंग दी प्लैंक्स रिलेशन. अल्बर्ट आइंस्टाइन की जो रिलेशन हमने लास्ट टाइम जो है डिस्कस की थी कि हमारे पास अल्बर्ट आइंस्टाइन का आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में नेचर ऑफ लाइट इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स की कंसिडरेशन आई. तो इट मीन plants explanation the light consists of bundles of energy which are photons, or there is existence of duality nature of the light under certain condition behave like wave, under certain condition behave like particle, whether small particles. तो एक क्वेश्चन जो जहन में आया डी ब्रॉगली के, वही whether small particles have wave nature. तो क्या small particles या सब atomic particles wave nature रखते हैं. Einstein in 1905 first proposed that light consists of bundles of energy, and we can mention it with E is equal to h nu. Einstein also suggested that photons have a relativistic mass given by E is equal to mc square. Another Einstein की relation जो कि यूटिलाइज होती है Einstein theory of special relativity में, जिसमें ये कहा जाता है कि E is equal to mc square, जिसको हम ज्यादा कॉमनली किससे कंसिडर करते हैं कि एनर्जी मास conversion में, कि एनर्जी और मास का कन्वर्जन. वी कैन आल्सो यूटिलाइज दैट एक्सप्रेशन E is equal to mc square. So there is that is the equation 1 and that is the equation 2. Equating equation 1 and 2, जब हम इन दो इक्वेशन को इक्वेट करते हैं as energy on both on these equation on the right hand side is same, so we can equate mc square is equal to h nu. As we know that nu is equal to c divided by lambda, so we are going to put the value of frequency in that expression, and we can say that mc square is equal to hc divided by lambda. After crossing the velocity of light on the right and the left hand side, and we get that expression mc is equal to h divided by lambda. As we know that product of mass and speed of light, velocity of light, product of mass and velocity, c is the velocity of light, so we can mention it with the momentum is what? Product of mass and velocity. So we can replace mc with the mv. So after that replacement, we can put the value of momentum p in the equation number 4. When we put the value of that mv or the p in that expression, we can get that expression which is p is equal to h divided by lambda. Or we can also write down that expression lambda is equal to h divided by p. That expression is basically known as de Broglie wavelength of an electron or photon. This equation applies to any system, यानी de Broglie की ये relation जो है applies to any system whose wave properties are represented by lambda and particle properties are represented by mv. अच्छा, यानी कि हमारे पास ये expression हर उस जगह यूटिलाइज हो सकती है जहां पे हम किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल की वेव प्रॉपर्टी को मेंशन कर रहे हैं लैम्डा से, यानी वेवलेंथ से, वेवलेंथ एसोसिएटेड with the wave nature of a substance, and the properties particle properties represented by mv. If we have a particle which having a particular mass, so we can the particle properties of these subatomic particles by mv.
अच्छा, लुइस डी ब्रॉगली यहाँ पे वही चीज मैंने मेंशन कर दी कि अगर लुइस डी ब्रॉगली 1924 में एक्सटेंडेड दी वेव पार्टिकल रिलेशनशिप फॉर फोटॉन्स से उसने एक्सटेंशन लेते हुए, यानी लाइट के ऊपर ये अप्लाई हो रही थी, तो उसने इस चीज का एक्सटेंशन किसके ऊपर अप्लाई किया, यानी उसने इसी चीज को यूटिलाइज किया सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए विच आर इन मोशन, जो क्या है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ईटीसी। लेकिन ये हाइपोथेसिस जो है इसकी एक्सपेरिमेंटल कंफर्मेशन जो है 1928 और 27 में डेविसन, जर्मर एंड जीपी थॉमसन ने दी अपनी एक्सपेरिमेंटल मेथड्स के थ्रू। यानी लुइस डी ब्रॉगले का तो एक हाइपोथेसिस था, उसकी एक रिलेशनशिप थी जो उसने जनरेट करके बताई कि ये एक जनरल हाइपोथेसिस है विच वाज लेटर कंफर्म बाय सम एक्सपेरिमेंट। यानी हाइपोथेसिस एक वो चीज होती है जिसको आप फर्दर किसी एक्सपेरिमेंटल टेस्ट के थ्रू कंफर्म कर सकें। तो यहाँ पे उसका एक्सपेरिमेंटल कंफर्मेशन दी गई डेविसन और जर्मर ने इन 1927 में और जीपी थॉमसन ने 1928 में। They demonstrated that stream of electrons are diffracted when they are scattered from crystals। यानी अगर इलेक्ट्रॉन्स की स्ट्रीम को क्या कहते हैं पास किया जाए तो वो क्या शो करते हैं, डायफ्रैक्शन का पैटर्न शो करते हैं आफ्टर दी स्कैटरिंग फ्रॉम द क्रिस्टल। देयर we can also visualize the experimental setup for a study of the diffraction pattern which was generated by the electron beam. An apparatus similar to that used by Davison and Germer to discover electron diffraction। यानी इलेक्ट्रॉन का डायफ्रैक्शन होना, इसकी ये कंफर्मेशन दे रहा है इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल नेचर बट डायफ्रैक्शन जनरेशन एक वेव नेचर से एसोसिएटेड है। तो यहाँ पे हमारे पास इस चीज की कंफर्मेशन आ रही है कि हमारे पास पार्टिकल वेव नेचर पोजेस कर रहा है थ्रू जनरेशन ऑफ डायफ्रैक्शन पैटर्न। डेविसन और जर्मन ने बेसिकली ये जो एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का स्कैटरिंग को स्टडी किया बाय द सरफेस ऑफ अ निकल मेटल क्रिस्टल से और ये थ्रू यानी स्ट्राइकिंग द इलेक्ट्रॉन ऑन अ निकल मेटल सरफेस एंड दे डिस्प्ले डायफ्रैक्शन पैटर्न। अच्छा, यही इसी तरीके से जीपी थॉमसन ने भी एक्सपेरिमेंट स्टडी किया जिसमें स्कैटरिंग थ्रू सेलुलॉइड्स के थ्रू स्कैटरिंग करवाई गई, सेलुलॉइड्स के थ्रू स्कैटरिंग करवाई गई और जिसमें डायफ्रैक्शन का इफेक्ट स्टडी किया गया। In this slide, you can also visualize X-ray or electron diffraction pattern of aluminum foil which are observed to be seen. The similarity of these two patterns shows that electron can behave like X-ray and display wave-like properties. Momentum is equal to MV विच ऑल्सो कन्फर्म दैट कि वेवलेंथ और जो मास है वो एक दूसरे के इनवर्स रिलेशन है। यानी अगर हमारे पास कोई चीज बड़े साइज की है तो उसका वेवलेंथ क्या होगा, बहुत शॉर्ट होगा। अगर कोई हमारे पास चीज स्मॉल साइज की है तो उसका वेवलेंथ क्या होगा, लॉन्ग होगा। यानी वेवलेंथ लॉन्ग, वेवलेंथ ज्यादा, मास कम, वेवलेंथ कम, मास ज्यादा। सो वी कैन से दैट फॉर मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, वो तमाम ऑब्जेक्ट जो बड़े साइज की हैं, डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज सो शॉर्ट दैट इट डज नॉट लीड्स टू ऑब्जर्वेबल फिनोमिना। वो तमाम ऑब्जेक्ट्स जो बहुत बड़े साइज की हैं, यानी अगर हम कोई बॉल ले लें, हम कोई भी ऐसा मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, पेन, पेंसिल, कोई भी ऐसा मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट ले लें, तो डी ब्रॉगली वेव एसोसिएटेड डी ब्रॉगली वेवलेंथ उसके लिए बहुत शॉर्ट है कि उसको जरूरत ही नहीं कि हम उसे कंसीडर करें। यानी उसको ऑब्जर्वेबल फिनोमिना नहीं है, इतने बड़े मास के लिए वो डी ब्रॉगली का वेवलेंथ को कंसीडर करना एक ऑब्जर्वेबल फिनोमिना नहीं है। However, for microscopic object, लेकिन अगर हम माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स को देखें तो उनके लिए ये वेवलेंथ एक कंसिडरेबल फिनोमेना है, बिकॉज ये वेवलेंथ उन माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेस के बराबर होगी। यानी कि अगर हम बॉन्डिंग्स को देखें तो हमारे पास जो बॉन्डिंग पैटर्न होता है वो एंगस्ट्रॉम में हम ज्यादातर ले रहे होते हैं। यानी बहुत रेडियस वगैरह अगर हम देखें तो हमारे पास एंगस्ट्रॉम की रीजन में आता है। अगर हमारे पास ये वेवलेंथ एसोसिएटेड वेवलेंथ, क्योंकि मास क्या होगा उन माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट का, मास बहुत शॉर्ट होगा, तो एसोसिएटेड वेवलेंथ उससे क्या होगी, वो थोड़ा हाई हो जाएगी। तो ये माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए ये एसोसिएटेड वेवलेंथ एक कंसिडरेबल फिनोमिना रखती है।
इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम देखते हैं जो वेव पार्टिकल ड्यूलिटी की कंफर्मेशन देता है इलेक्ट्रॉन के लिए, दैट इज द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, विच इज अगेन अ की स्टेप टू अंडरस्टैंडिंग द एटॉमिक स्ट्रक्चर। यानी हमारे एटॉमिक स्ट्रक्चर को फुल फ्लैश कंफर्म करने के लिए या हमारे जो एटम्स के स्ट्रक्चर को कंफर्म करने के लिए जो हमारे पास एक जो है टूल, बेसिक टूल हमें जो मिला वो दैट इज द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। थ्रू दैट वी कैन कंफर्म द एटॉमिक स्ट्रक्चर। यानी हमारे पास जो एटॉमिक स्ट्रक्चर की बेसिक कंफर्मेशन आई वो थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी था। और ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी बेसिकली हमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दिखा रहा है डी ब्रॉगली के हाइपोथेसिस की। वो किस तरह के हम ये कंसीडर करते हैं कि ह्यूमन आई ज्यादातर विजुअलाइज करती है 400 टू 800 कह लें या 750 नैनोमीटर में। अगर हम लाइट माइक्रोस्कोप पे जाएं तो वो 200 नैनोमीटर तक हम विजुअलाइज कर सकते हैं। हमारी जो आई विदाउट एनी सोफिस्टिकेटेड टूल, विदाउट एनी टूल और अनएडेड आई, हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो विजुअलाइजेशन पावर है वो किस साइज तक हम विजुअलाइज कर सकते हैं, 0.02 सेंटीमीटर तक। इसके बाद हम बहुत सारी चीजें उनको आपस में ब्लर होते हुए, यानी उनमें रेजुलेशन या हम उनको रिजॉल्व होते हुए या डिफरेंस उनमें फील करते हुए नहीं पाएंगे अगर हम इससे शॉर्ट साइज में चले जाएं। हमारे पास इन एज कम्पेयर टू दिस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जो है हमें जो रेजोल्यूशन देता है, यानी चीजों के अंदर जो हम डिफ्रेंसिएशन या उनको बड़े साइज के अंदर दिखाना या छोटे से छोटे साइज को बड़े उसमें हमारे पास रिजॉल्व होकर इसका साइज का आना, दैट ग्रेटर रेजोल्यूशन इज पॉसिबल बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, विच इज कितनी 100,000 टाइम्स जो है वो ग्रेटर है देन विजिबल लाइट। विजिबल लाइट की निस्बत हम 100,000 टाइम मोर रेजोल्यूशन रखते हैं किसके अंदर, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में, जिसके थ्रू जो है माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के साइजेस को विजुलाइज करना जो है वो आसान है। अच्छा, ये जजमेंट कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किस वेरिएबल के थ्रू वर्क कर रहा है, दैट इज बेसिकली रिलेटेड विद दी voltage, that is basically related with the how much potential we applied on the accelerating plates। यानी कि अगर हम इस चीज को देख रहे हैं when beam of electron is passed through accelerating electrostatic field, यानी इलेक्ट्रॉन की बीम को अगर पास करवाया जाए इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में तो हमारे पास क्या होगा, यानी एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है किसके दरमियान में से, यानी कि हमारे पास दो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हैं हमारे पास जिनके ऊपर हमने जो है पर्टिकुलर चार्ज डेवलप किया हुआ हो, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक मींस स्टेबल हमने वो जनरेट की हुए हैं, चार्ज के रिएक्शन पोल्स की जनरेशन की हुई है। लाइक एक हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज हो गया, दूसरा हमारे पास नेगेटिवली चार्ज हो गया। ये पर्टिकुलर हमने एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड वहां पे जनरेट की है और इलेक्ट्रॉन्स को उन फील्ड्स के थ्रू से जो है हम इलेक्ट्रॉन्स को पास करवाएं तो क्या होगा, लाजमत है हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्या है, एक चार्ज नेचर रखता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के थ्रू अगर किसी पर्टिकुलर फील्ड के थ्रू वो पास हो रहा है तो वो क्या करेगा, अपना डिफ्लेक्शन या अपना जो है साइज, इलेक्ट्रॉन की बीम का साइज के अंदर जो है रिडक्शन होने के चांसेस हैं अगर हम इस फील्ड को, इस पोटेंशियल को वेरी करें। So on the basis of this, we can say that when beam of electron is passed through an accelerating electrostatic fields, accelerating यानी two parallel plates with potential difference of volts, यानी दो parallel plates पे आपने particular potential difference create कर दिया जिससे आपके पास particular electrostatic field की generation हो गई। अब हम क्या करेंगे, potential energy gained by the electron equated with the kinetic energy। potential energy जो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे इसको हम किससे, काइनेटिक एनर्जी जो उसकी मोबिलिटी है उससे हम इक्वेट करने जा रहे हैं। यानी कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होगी, जितनी पोटेंशियल एनर्जी जितनी पोटेंशियल से आप उसको मूव करवा रहे हैं, दैट इज डिपेंडिंग ऑन द काइनेटिक एनर्जी थ्रू व्हिच इलेक्ट्रॉन पास विद इन दीस फील्ड। इफ वी आर गोइंग टू इक्वेट दीस टू एनर्जीज यानी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, एज वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर एंड द पोटेंशियल एनर्जी इज ev। We are going to take velocity
on this side, and after cross multiplication we get 2 on this side 2 EV divided by M. M हमारे पास क्या हो गया, नीचे यहाँ पे M आ गया. So V square is equal to 2 EV divided by M. After for getting the value of only V velocity, यहाँ पे हमारे पास ये जो स्मॉल, आप देखें एक स्मॉल V में इससे मेंशन है, दैट इज द वेलोसिटी, और ये डार्क जो हमारे पास बोल्ड फॉर्म में मेंशन है, दैट इज रिलेटेड विद द पोटेंशियल. टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो हमारे पास कंडीशन आती है, रूट लेने से यहाँ पे ये वेलोसिटी सिंगल में आपके पास ये रूट कैंसिल हो गया, और आपके पास यहाँ पे ऑन दिस साइड हमारे पास जो है 2 EV डिवाइडेड बाय M में कन्वर्जन हो गई, यानी वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 EV डिवाइडेड बाय M. वी कैन राइट डाउन दिस एक्सप्रेशन एज द इक्वेशन 1. As we know that de Broglie wavelength or momentum is P is equal to h divided by lambda, or we can say that P is equal to mv. So we can put the value of mv here and h divided by lambda, or we can say that after cross multiplication we get the value of v on this side and h divided by m on this side. ये cross multiply किया हमने तो हमारे पास क्या हुआ, ये मास नीचे आ गया और वेलोसिटी हमारे पास on the right hand side है. So we get another expression which is mentioned with the equation number 2, and we are equating the equation number 1 and the equation number 2, putting the value of v, because we know that on the right hand side we have the value of v, so we can say that these two equations are equal. So h divided by m lambda is equal to 2 ev divided by m. Inversing the above equation, अगर हम इस equation को inverse कर लें, so we get mv क्या हो जाएगा, हमारे पास ऊपर आ जाएगा और h हमारे पास नीचे चला गया. इसी तरीके से inversing that expression, तो जब इसको हम inverse करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 1 divided by 2 ev divided by m. And then after cross multiplication, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद हमारे पास ये जो मास है ये यहाँ पे नीचे आ जाएगा बाहर, क्योंकि यहाँ पे ये जो हमारे पास इंटरनल अंडर रूट के अंदर जो मास है दैट इज हैविंग अ वैल्यू ऑफ हाफ. ये हमारे पास क्या है, हाफ यानी अंडर रूट की वैल्यू पे, और ये जो m जब क्रॉस मल्टीप्लाई होकर नीचे आएगा तो ये है 1 की फॉर्म में, यानी इसकी पावर एक्सपोनेंट जो है वो 1 है. तो 1 डिवाइड बाई 2 EV m इंटू m हमने अंडर रूट से बाहर निकालिए क्योंकि इसकी पावर 1 है और यहाँ m की पावर हाफ है. अच्छा, एंड सो वी कैन डिवाइड द वैल्यू ऑफ 1 इंटू हाफ, यानी हम डबल इसको मेंशन कर सकते हैं कि ये भी हाफ पे ये भी हाफ पे, तो वी कैन आल्सो राइट डाउन कि m की पावर क्योंकि 1 है जबकि हमारे पास अंडर रूट वाले की पावर हाफ पे है, तो हम यहाँ पे 2 को हाफ में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 1 से हम ये वाला m कैंसिल कर देते हैं रूट वाला. सो वी गेट दैट वैल्यू ऑफ m अगेन विद द अंडर रूट, सो दिस एक्सप्रेशन इज मल्टीप्लाइड विद दिस, क्योंकि ये हमारे पास ऊपर है और ये नीचे डिवीजन में है. वी गेट दैट एक्सप्रेशन which is h is equal to h 2 ev m, और आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ ऑल द कांस्टेंट, और हमारे पास जो वेरिएबल है दैट इज द पोटेंशियल. पोटेंशियल हमारे पास वेरिएबल में है क्योंकि हम पोटेंशियल को कंट्रोल करके जो है हम मोबिलिटी को उसके कंट्रोल कर सकते हैं, या उसकी जो है वेवलेंथ उसके ऊपर पोटेंशियल पे डिपेंडेंट है. After putting the value of h Planck's constant, which is 6.626 exponent minus 34 joule second, और इलेक्ट्रॉन की जो हमारे पास चार्ज है 1.602 exponent minus 19 coulomb, और the mass of the electron 9.10 exponent minus 31 kilogram. The remaining thing is the voltage. After putting all these values, we get that form in the form of meter. यानी अगर आपके पास कोई चीज जो है यानी यूनिट कन्वर्जन में आप इसको करके देख लें, आपके पास जो एट द एंड आएगा तो वो आएगा 1.23 एक्सपोनेंट माइनस 9 मीटर. बट द रिमेनिंग वेरिएबल in the denominator is under root V, which is the voltage. If we are going to convert the above expression into Armstrong, so we can write down it into 12.3 divided by under root V, or in nanometer 1.23 divided by V nanometer.
On the basis of this expression, our electron microscope will work. कि इसी expression को देखते हुए हमारा electron microscope work करेगा. या electron microscope जो है basically इस expression को utilize करते हुए ही working show करता है. यानी अगर आप voltage, क्योंकि voltage और वेवलेंथ का एक दूसरे से क्या है, इनवर्स रिलेशन है. तो वोल्टेज जितना हम हाई कर देंगे, हमारे पास जो एसोसिएटेड वेवलेंथ है वो क्या हो जाएगी, वो शॉर्ट उससे हो जाएगी. So on the basis of this, it can be seen that by increasing the voltage, smaller wavelength can be obtained. Thus, an electron microscope is different from the light microscope. क्योंकि हम लाइट माइक्रोस्कोप को रिप्लेस कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन बीम से, और बेटर रेजोल्यूशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन बीम. हमारे पास यहाँ देखें वेवलेंथ क्या है, 120 पिकोमीटर है, और हमारे पास जो एक्सेलरेटिंग यानी इलेक्ट्रॉन जो एक्सेलरेटेड थ्रू किस वोल्टेज से एक्सेलरेट कर रहा है, 100 वोल्ट से. तो 100 वोल्ट से कर रहा है एक्सेलरेशन, और वेवलेंथ एसोसिएटेड वेवलेंथ क्या हो गई, 120. लेकिन अगर 10,000 वोल्ट से एक्सेलरेशन हो रही है इलेक्ट्रॉन की, यानी वोल्टेज हाई हो गया, तो हमारे पास जो एसोसिएटेड वेवलेंथ क्या होगी, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है, तो हमारे पास एसोसिएटेड वेवलेंथ क्या होगी, 12 पिकोमीटर पे. यानी वेवलेंथ और ज्यादा थिन आप स्टडी कर सकते हैं अगर हमारे पास जो है पोटेंशियल जिसके थ्रू या जो वोल्टेज जिसके थ्रू जो है इलेक्ट्रॉन की बीम पास हो रही है उसका वोल्टेज आप हाई कर दें. इसी तरीके से अगर हमारे पास यहाँ पे विद इन दैट टेबल विच गिव्स दी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ वेरियस मूविंग ऑब्जेक्ट्स, कि अगर हमारे पास बहुत सारी मूविंग ऑब्जेक्ट्स हो, एक तो हमने वोल्टेज का डिफरेंस इससे देख लिया, जो कि हमने प्रीवियस एक्सप्रेशन में भी जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे अप्लाई होती है उसके थ्रू भी कंफर्मेशन कर ली कि हाँ वोल्टेज का ये वेरिएबल जो है वो वेवलेंथ पे इफेक्ट कर रहा है. दूसरा, अगर हमारे पास साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो डिफर करे, यानी अगर हम अल्फा पार्टिकल पे चल रहे हैं थोड़ा बड़ा साइज पे, हम बॉल यूज कर लें, बेस बॉल यूज कर लें, तो साइज यानी मास भी उनका क्या हो गया, बढ़ गया. अगर हम गोल्फ बॉल को देखें या बेस बॉल को देखें, 0.140 किलोग्राम इसका मास है एज कम्पेयर टू द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन. यानी इलेक्ट्रॉन का मास की निस्बत ये क्या है, बहुत बड़ा मास है. एक मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, वही बात हो गई कि यहाँ पे ये मैक्रोस्कोपिक है और यहाँ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स हैं. अब ये मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की जो एसोसिएटेड वेवलेंथ है वो देखिए किस कदर लो है, जो कि इस मास के लिए एक क्या कहते हैं, एक यानी अंडर कंसिडरेबल फिनोमेना नहीं है. यानी इस चीज को कंसिडर, इस वेवलेंथ को कंसिडर नहीं किया जा सकता, एक ऑब्जर्वेबल फिनोमेना नहीं है फॉर मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट. लेकिन अगर हमारे पास एक माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है तो उसकी निस्बत ये जो वेवलेंथ है ये इसके इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेस के बराबर होगी, तो ये यहाँ पे एक ऑब्जर्वेबल फिनोमेना है. इसको ऑब्जर्व किया जाएगा क्योंकि ये एज कम्पेयर टू दिस मास एक हाई वेवलेंथ है एसोसिएटेड. तो ये टेबल हमें एक तो वोल्टेज का डिफरेंस, दूसरा साइजेस का डिफरेंस और उनसे एसोसिएटेड वेवलेंथ की भी कंफर्मेशन दे रहा है. This is the overall description and practical application of de Broglie relation.